आज की डेट में, आज के युग में ये हो गया है कि हम आहार और विहार को तो ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, उसको तो हम पूरा वैसा ही रखेंगे जैसा हम चाहते हैं। और फिर उसके बाद हम एक जो 5% जिसका रोल है मेडिसिन का या औषधि का, उसके बलबूते पे हम चाहेंगे कि हमारा शरीर ठीक हो जाए। तो डू यू थिंक इट वर्क्स? Hello everyone, welcome in the 18th episode of the Med Talk powered by Game of Pharma, Medical Education Determination Talk. And today we have with us a very special guest, Puneet Agrawal sir. Sir is the 20 plus years experience of Ayurveda industry and founder of Nirogam. Welcome on the show, sir. Thank you, Lokesh. After COVID-19, Ayurveda industry has changed a lot. Like हमने काढ़ा लिया, हमने different type of Ayurveda medicines try की, और not only me, the everyone, sir. So, sir, what's your views on that, sir? Right. So, Lokesh, thank you for first of all having me here. And you said कि Ayurveda industry has changed a lot. I am not sure whether Ayurveda industry has changed, or probably, after COVID-19, people's perception towards Ayurveda has certainly changed. जो लोग आयुर्वेद को या तो नकारते थे या उसके बारे में इतना जानते नहीं थे, COVID has given them an opportunity to actually inquire ki what other alternatives are available. So while we are taking kadha or any decoction, those decoctions were always available for the last hundreds of years. It's just that right now we have gotten present to it, and hence जो काढ़ा तो पहले भी होता था, बट वो आज समटाइम्स उसने चाय या कॉफी को या आपके रेगुलर बेवरेज को रिप्लेस कर दिया है, राइट, फॉर द सेक ऑफ आवर ओन हेल्थ. सो विच इज गुड. it's a good trend to have, and I am glad that people have gotten aware about what are the things in our kitchen and around us, which nature has bestowed upon us, and we are making good use of it. Sir, I want to know basic philosophy about basic about Ayurveda, sir. Like how Ayurveda treats a disease, sir. लोकेश, हमारा जितना जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद मतलब साइंस ऑफ लाइफ, राइट. आयु मतलब लाइफ, and ved matlab science, so science of life. And that whole thing is based on 5 basic elements जिससे सब कुछ बना है: fire, water, earth, sky and space, right? So इन 5 चीजों से everything is formed, including our bodies. And if I put it simply, any imbalance of these 5 elements would cause an ailment or a disease. तो आयुर्वेद में अलग अलग चीजें, हालांकि बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, बुक्स लिखी गई हैं, but at the very basic level, every disease is defined as an imbalance of these 5 elements, right? And these 5 elements are then combined to form what we call a prakriti of the body, or a body humor, or जिसे बोलते हैं दोष. तो आयुर्वेद में 3 तरह के दोष होते हैं: वात, पित्त, कफ. ये तो आपने सुना है, राइट? बट वो एक्चुअली में दोष क्या है? विच इज अ बॉडी टाइप, द टेक्सचर ऑफ what you are made of, right? How did you wound up being like that? And that's the basic prakriti. So Vat is made of air and space, then Kapha is made of water and earth, and what we call Pitta is fire and water, right?
And when we actually measure what is what we call vikruti, or the imbalance of any of these doshas, then once we restore this, everything gets solved. तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं ब्लड प्रेशर को ठीक करना चाहता हूं और अगर तो मैं और चीजें ठीक नहीं होंगी. Everything will fall in place as long as I'm treating the underlying cause of it. तो जब तक हम अगर तो एक उदाहरण दूं मैं आपको. कैन आई गिव यू एन एग्जांपल? सो अगर पानी उबल रहा है और आपको उबलने से रोकना है, तो आप क्या करोगे? गैस को या तो लो पे कर दोगे या उसको बंद कर दोगे. करेक्ट? तो सिमिलरली गैस और द फायर इज द कॉज ऑफ वाटर बॉइलिंग. करेक्ट? नहीं तो हम क्या सोचते हैं ना, पानी को फूंक मारूं, उबलने से रोक दूं, पतीला उतारूं, राइट, ऑल दैट. बट पानी तो उबल इसलिए रहा है क्योंकि गैस नीचे चल रही है. और जब आप गैस बर्नर, स्टोव या फायर बंद कर दोगे तो पानी अपने आप उबलना बंद हो जाएगा. करेक्ट? सिमिलरली, सो इन आयुर्वेद वी ट्रीट द कॉज ऑफ इट, नॉट द इफेक्ट. तो ट्रीटमेंट अगर जो भी हम करते हैं तो वो कॉज लेवल पे करते हैं कि कॉजेशन क्या है उस डिजीज की. एंड हेंस वी विल ट्रीट व्हाट इज द विकृति और द इम्बैलेंस ऑफ द दोष. तो एक बार हमें ये पता चल गया कि कौन सा दोष इम्बैलेंस में है, तो उसको रिस्टोर करेंगे बैलेंस को, और वी आर इन हार्मनी विद नेचर, वी आर इन हार्मनी विद द यूनिवर्स. So you have 20 plus years of experience in the Ayurveda industry. So sir, कोई key things आप मेरे को बता सकते हैं जो कि like इंडस्ट्री के लोगों को ही थोड़ा पता हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो मतलब बहुत ही ज्यादा यूनिक हो अबाउट आयुर्वेदा? तो इंडस्ट्री के माध्यम से लोकेश मेरे को जो दिखता है, हालांकि मैं खुद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूं, मैं इस व्यवसाय में जरूर हूं, बट जैसे मैंने इंडस्ट्री को पिछले करीबन 20-22 साल में देखा है, तो मुझे ऐसा दिखता है कि आयुर्वेद की जो प्रोपगेशन है वो अभी तक इंडिया में इतने हजारों सालों के बाद भी नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग बीइंग रिटन इन संस्कृत. जितनी भी हमारे ओरिजिनल वेद हैं, जहाँ जो चरक ने लिखे, सुश्रुत ने, वाग्भट ने, वो सारे संस्कृत में हैं. एंड हालांकि हमने वी हैव सो मेनी डॉक्टर्स एंड वी हैव so many Ayurvedacharyas, we have so many people in the medical fraternity, but kisi ne, it was, I don't like, this is not from a blame part, but this is somewhere that nobody actually took care of translating those texts into something which is comprehensible so that others can use it. अब अगर आप that propagation of Ayurveda will start, has been happening for the last 10 years and will also probably have a quicker pace. जैसे जैसे हम इनको ट्रांसलेट कर रहे हैं, जैसे जैसे हम उनको एजुकेट कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, तो वैसे वैसे वो प्रोपगेशन होएगा. तो मुझे एक चीज जो दिखाई देती है कि एक तो सब कुछ संस्कृत में लिखा गया था, दूसरा कि आज की जनरेशन और आज की हमारी हैबिट्स और बिहेवियर उस टाइम के बिहेवियर से मैच नहीं करता, तो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ अ ब्रिज. तो ये जो गैप है हमारा कि आज मैं इतना काढ़े क्यों पीऊंगा, और देर आर जो फ्रीक्वेंटली जो चैलेंजेस फेस करते हैं लोग, या तो मेरे को ये दवाई स्वाद नहीं है क्योंकि मेरे को ये कड़वा कड़वा लगता है, और मैं जब आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाता हूँ तो मेरे को 6-7 चीजें दे दी जाती हैं कि सुबह आप ये पियो और शाम को ये पियो और दोपहर को ये खा लो और ये परहेज करो, ये ना परहेज करो. So that is where they are seeking convenience, but they can't find any.
और फिर एक चीज और होती है कि जब तक आपकी कोई मोटिवेशन ही नहीं है वहां पे, पहले तो आप इतनी सारी दवाइयां लेके आ जाते हो और आपको फिर भी एक विश्वास ही नहीं है, एक मोटिवेशन नहीं है, कन्विक्शन नहीं है उस पे, तो फिर आप उसको कंटिन्यू भी नहीं करते हो। ठीक है। और अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं करते हो तो फिर आपको ऐसा लगता है कि ये काम नहीं करता है, राइट। और कुछ कुछ ऐसे मैं ये भी कहूंगा कि ओवर द टाइम मिथ्स हैं, हियर से आए हों, या फिर एक फार्मा लॉबी भी है तो उनकी तरफ से भी आए हो कि ये आयुर्वेद स्लो होता है। I am the generation G, like child. So what we want in our current scenario is like कि जो चीज हो वो fast हो जाए, like entertainment भी हमारा fast हो जाए. So like we shift from the longer content to the reels. So what people think कि Ayurveda takes time to in the recovery, but they don't know कि Ayurveda is the key which have also longer duration effect. नॉट द कि आज इफेक्ट खत्म हो गया. इफ अगर मैं रोज काढ़ा पी रहा हूं तो नॉट फॉर द वन डिजीज, इट विल प्रिवेंट मी फॉर लाइक अदर 100+ डिजीजेस. तो व्हाट दीज थिंग्स पीपल डोंट नो, आई थिंक सो अबाउट दिस. आयुर्वेद में हम एक 3 pronged अप्रोच लेते हैं जिसमें आहार विहार औषधि की बात की जाती है, राइट। और एक आयुर्वेदिक प्रोवर्ब भी है कि अगर आपका डाइट ठीक है तो आपको दवाई की जरूरत नहीं, और अगर आपकी डाइट खराब है तो दवाई वैसे ही नहीं काम करेगी, ये बोला जाता है, राइट। और आहार का बहुत बड़ा रोल है और करीबन 80% डाइट का ही काम है, क्योंकि व्हाट यू आर व्हाट यू ईट, राइट, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद विहार विच इज द लाइफस्टाइल, की आप दिनचर्या आपकी कैसी है, आप क्या क्या करते हैं, क्या चीज नहीं करते हैं, क्या चीज करते हैं, किस टाइम पे करते हैं, राइट, किस टाइम पे खाना खाना चाहिए, किस टाइम पे नहीं खाना चाहिए, वो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। और अगर ये आहार और विहार आपका ठीक है तो आपको जो औषध है, वो जो तीसरा जो एस्पेक्ट है कि मेडिसिन की आपको जरूरत नहीं है, राइट। जब आपका खाना ठीक है, जब आपका लाइफस्टाइल ठीक है, मेडिसिन इज ओनली फॉर अ करेक्शन। बट आज की डेट में, आज के युग में ये हो गया है कि हम आहार और विहार को तो ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, उसको तो हम पूरा वैसा ही रखेंगे जैसा हम चाहते हैं। और फिर उसके बाद हम एक जो 5% जिसका रोल है मेडिसिन का या औषधि का, उसके बलबूते पे हम चाहेंगे कि हमारा शरीर ठीक हो जाए। तो डू यू थिंक इट वर्क्स? Like you said, sir, right, कि only with the one thing, with one tire of car you want to go as much fast as possible, but it wouldn't work. एब्सोल्युटली, राइट। कि हमने बाकी 2-3 टायर तो ध्यान नहीं दिया उसका, वो तो हटा दिया, और फिर गाड़ी एक ही टायर के उस पे बेस पे चल रही है तो वो तो घसीटती हुई जाएगी और आपका नुकसान भी करेगी, वियर एंड टियर भी होगा। Yes, yes. और फिर हम क्या करेंगे, उस एक टायर को ब्लेम करेंगे Sure. कि ये Yes, sir. दवाई तो काम नहीं करती, ये दवाई स्लो है। सो इट इज, the more the good thing about what is happening in the last a few years is that the more people are getting aware to what should be the food and lifestyle and what is available around them. This is getting corrected and people are, adopting Ayurveda, and that's a good thing. Marketing or e-commerce websites are also decrease the gap between the consumers and the manufacturers. Like different types of e-commerce channels are there, and the consumer directly reach with the good product with these e-commerce mediums. So sir, I want to know more about the Nirogam's e-commerce and the digital medium where Nirogam are currently present. Right. So we have an e-commerce store, and that is at nirogam.com. You can visit that. And this is for the Indian audience. And then we also have an international store, which is nirogamonline.com, where anybody from outside India can buy. And we ship to almost 70+ countries using various, logistic partners.
Plus, we also have an Amazon shop both in India and the US. So these products are available there. And the categories that we are present in is, one is that, general wellness supplements. Then we have therapeutic or medical, formulas for chronic ailments. And that is what our specialty is. And then we've launched a functional food range where our first product is, fortified cookies, where we have tried to make cookies with good flours and healthier sugars. And plus, so we are here with the functional foods. What we are trying to do is bridge the gap between swad, which is the taste, and swast, which is the health. तो हम नहीं कह रहे कि हम सबसे हेल्दी फूड बनाते हैं, बट हम ये भी नहीं कह रहे कि हम सबसे टेस्टी फूड बनाते हैं, बट हम उसके बीच का बनाते हैं ताकि आपको सिंपली एंड कन्वीनियंटली आपको वो खाने मिले जो कन्वीनियंट भी है और आपको कोई गिल्ट भी नहीं होता. People are more shifting towards the unhealthy snacks. Like food से ज़्यादा what is changing is snacks habit. Because people want to consume some type of food which is tasty in a low amount, and also like people want it should be healthy. So I think this product will be a massive change in that industry. एक बात इधर कहना चाहूंगा लोकेश कि snacking is not bad, but at least conscious snacking is what we want. हम यूजुअली आप देखोगे जब हम स्नैकिंग करते हैं तो या तो हम टीवी के सामने बैठे हैं या कंप्यूटर के सामने बैठे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं या मूवी हॉल में है, राइट? एंड दैट इज माइंडलेस, कि मुझे पता भी नहीं कि मेरे मुंह में क्या जा रहा है. और मुझे बिकॉज वी आर stimulating ourselves with gadgets and screens, we would rather, our body triggers a response कि मुझे कुछ चाहिए, अभी मेरा ना मुंह चलता रहना चाहिए, राइट? अगर आप एक एक्शन सीन देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप भी एक्शन चाहते हो ना अपनी बॉडी के साथ. एंड दैट इज वेयर द माइंडलेस ईटिंग कम्स इन, कि यार पॉपकॉर्न खाते रहो या बिस्किट खाते रहो, कुकीज खाते रहो या वेफर्स खाते रहो, right? That is mindless. But there is something which you can snack, but be mindful of that. In fact, even if you take, though I don't advocate popcorn or snacks that are generally available, chips or wafers, but अगर आप चिप्स का पैकेट माइंडफुली खाते हो तो वो बॉडी को फिर भी गट फ्रेंडली होएगा वर्सेस कि कुछ माइंडलेसली खाते हो, राइट? और जब आप माइंडलेसली खा रहे हो तभी आपको नहीं गुमान होता कि मैं कितना खा रहा हूं, राइट? सो आई वुड से दैट व्हाटएवर यू हैव, एटलीस्ट बी विद द फूड. खाना भी चाहता है ना कि आप उसके साथ रहो जब आप उसको भोग रहे हो. Want to improve the snacking habits of like people. So I want to know more about your expansion plans. Right. So Lokesh, हमारा फोर्टे हमेशा जब से हमने निरोगम करीब earlier we were known as Herbs Can Cure, and in the year 2000 when we launched our first product for diabetes, we realized कि लोग वो चीजें ढूंढ रहे हैं जिसका इलाज कुछ नहीं है, एंड दे डोंट हैव एनी सपोर्ट. लाइक अगर आप डायबिटीज की दवाई खा रहे हो तो फिर खाते ही जा रहे हो बिकॉज आपको किसी ने कहा है, और वो कॉमन बिहेवियर हो गया है कि ये खाना ही पड़ता है, ये डायबिटीज की दवाई खानी ही पड़ती है पूरी जिंदगी, और ब्लड प्रेशर की दवाई खानी ही पड़ती है पूरी जिंदगी, राइट? और उससे आपकी इतना एक कन्वीनियंट बिहेवियर हो गया कि अब क्योंकि मैं दवाई खा रहा हूं तो फिर अब मुझे और आहार विहार पे तो फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? क्योंकि दवाई मेरा टेक केयर कर ही रहेगी, राइट? तो हमारा फोकस रहा है कि वो चीजें सॉल्व करना, वो बीमारियां को सॉल्व करना
जहां अभी तक मॉडर्न मेडिसिन ने इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं किया है. So whatever supplements or products we want to bring in and are under research and designing are more about how do we solve something which has not been solved yet. So for example, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि in colder countries there is a problem called Raynaud's syndrome. और रेनॉल्ड्स में क्या होता है, आपके जो लिम्स होते हैं हाथ के और पाँव के, वो स्वेल अप हो जाते हैं. इसे इट्स लाइक अ वेरिएंट ऑफ स्क्लेरोडर्मा, जिसमें आपको कोल्ड में स्वेल अप हो जाते हैं और उसमें से कई बार ब्लड भी निकलने लग जाता है, और वो पुअर ब्लड सर्कुलेशन का की वजह से होता है. अब उसके लिए किसी ने काम नहीं किया क्योंकि वो बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, खाली दुनिया में 2-3% लोगों को होता है. बट वैसे देखा जाए तो 2-3% कम लोग नहीं है, उनको भी टेक केयर करना हमारी ही कहीं जिम्मेवारी बन जाती है. तो हमने उस पर रिसर्च करना चालू किया एंड वी लॉन्च समथिंग विच इज सपोर्टिव ऑफ दैट ailment, where the supplement can actually support the symptoms and attempt to correct them. And so something which improves blood circulation. तो हमने एक product निकाला which is called Renomore, and we have been selling it outside towards the European and Scandinavian countries जहाँ ये बहुत ही ज्यादा होता है. तो इसी तरीके से हम अगले in 2022 we are launching about 20 products which are of similar nature, which are in micro niches, and they are solving and making a big impact to people who are looking for solutions but cannot find any. So the whole idea is to impact people and get them to a drug free, hospital free, medical free life. You talked about ki ahar vihar, and also good, like you have to manage all the things with the same pace. So sir, I want to know what are all different other than the ahar and the medicines which we can improve, like yoga and meditation. Can you tell us little bit more about these things, sir? Right. So लोकेश, अगर हम इसको सिंपल बनाते हैं, जो आहार विहार औषधि है, अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो पहली चीज है कि हम अपने आप को ये देखें कि अभी मैं प्रेजेंट हो जाऊं अपनी प्रेजेंट मोमेंट के लिए. सो लिविंग इन द प्रेजेंट. चाहे हम प्राणायाम करते हैं, चाहे हम योग करते हैं, योग का मतलब इज यूनियन, राइट? लिटरल मतलब उसका है यूनियन ऑफ व्हाट? माइंड एंड द बॉडी. करेक्ट? अब माइंड एंड द बॉडी को जब हम यूनाइट करते हैं तो इट इज बेसिकली कमिंग राइट नाउ टू द प्रेजेंट मोमेंट. सिमिलरली मेडिटेशन या प्राणायाम भी आपको उस प्रेजेंट मोमेंट में ले आते हैं, जब आप आपका जो मस्तिष्क है वो आपकी बॉडी के साथ यूनाइट हो जाता है या अलाइन हो जाता है, राइट? एनीथिंग विच इज डन माइंडलेसली, जो हम ये अतीत का गम, भविष्य की चिंता करते रहते हैं, लिविंग इन द पास्ट और इन द फ्यूचर, getting anxious about the future or regretting over the past, उससे हमारी प्रेजेंट मोमेंट तो जाती रह रही है, और उसी वजह से विकार आ जाते हैं, उसी वजह से दोष आ जाते हैं, उसी वजह से रोग भी आ जाते हैं. जैसे ही आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में, कि मेरे सामने लोकेश है, लोकेश के सामने मैं हूं, हम एक जूम कॉल पे बात कर रहे हैं, पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, और अभी हमारे को एक अपॉर्चुनिटी है कि लोग आगे जाकर सुनेंगे और इस बात को सुनेंगे. तो ये हमारा प्रेजेंट मोमेंट है. अभी आज अगर मैं सोचूं कि मेरे को 11 फरवरी के बारे में सोचना है या 8 फरवरी को क्या हो गया मेरे साथ, उसके बारे में चिंता करनी है, उसका कोई फायदा नहीं.
So simply put, योग, pranayam, or meditation, or looking after your ahar and vihar is always right now in this present moment. और उसका सार भी यही है, घूम फिर के, anything which is done in the present will always impact you in a positive way. Anything which is where you are not even present to your present will impact you in a negative way. So, like, at the end of this podcast, I want to know about how can we effectively live our life. So, in today's life, what we are thinking about, like, our generation G is thinking about, like, tensed about our career. Some people are tensed about their business. Some people are tensed about their children. Like, there are भाग दौड़ है जिंदगी के अंदर सर. So, how can people manage their time and a happy life together, sir? See, Lokesh, everybody is tense about you, just like you said, they are either running around or they are running after something. या कोई बस या ट्रेन पकड़नी है, राइट? या फिर Sure. मतलब मेरे को एंजाइटी है, तो वो एंजाइटी जो है, पहले तो ये देखना पड़ेगा वो पैदा किसने की है. इफ यू रियली सी, अभी आप मेरे सामने बैठे हो, आपको तो कोई बस या गाड़ी कोई पकड़नी नहीं है, राइट? तो ये पैदा किसने की एंजाइटी? Like, you are telling about the person, me, myself. हाँ, मतलब भाग दौड़ अगर है, ओ ये बहुत देर हो गई यार, वो जाना है, वो कब होगा मेरा करियर, कब कब मुझे जॉब मिलेगी, कब मेरी शादी होएगी, कब मेरे बच्चे होंगे, राइट? या मैं कब बड़ा होऊंगा, कितने पैसे कमाने, कब आएंगे इतने सारे पैसे, राइट? और हालांकि हमें लगता है कि हम भाग दौड़ रहे हैं, बट हम नॉर्मली तो अगर आप देखो कि हम इस बारे में सोच के पता नहीं कितना टाइम वेस्ट हो जाता है. अगर Like yes, sir. उतने ही टाइम में अगर आप 2 एक्शन ले लोगे, isn't that much more peaceful, calm, and you would generate your own happiness? क्योंकि जो भागदौड़ पैदा कर रहा है, अगर आपने दिमाग में अपने एंजाइटी है, तो उस एंजाइटी का निवारण भी आपके पास ही है, isn't it? Yes, sir. Yes. और लोकेश, सोचने में मजा आता है ना, पता है क्यों? क्योंकि सोचने में कोई काम नहीं करना पड़ता. काम करने के लिए थोड़ा एफर्ट लगता है. तो लोग कहते हैं कि यार एफर्ट ना करके ना सोच लेते हैं. ज्यादा चिंता करूंगा, ज्यादा अपने आप को विक्टिम बनाऊंगा कि देखो मैं बेचारा हूं, मैं इतना, मतलब मेरे को चिंता इस बात की है कि क्यों नहीं हो रहा है. बिकॉज एफर्ट नहीं डाला ना. So thank you so much, sir, for on the podcast, sir. It will be a great session. I learned a lot, sir. Wish you all the best, Lokesh, and may you keep doing such great sessions and keep shining.